Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, subscribe and comment the channel. Start multiple choice questions now. Prime factorization 5005. 5005, first of all take 5 ones are 0 0 ones are. Now it can be divisible by 7. 7 ones are 7 fours are 7 threes are 21. Now 11 ones are 11 threes are 13 and 33 and 13 ones are 13. So we got the prime factorization of 5005, which is 5, 7, 11 and 13. In the question they don't want the prime factors, they want how many they are. So they are not 2, 6, they are not 7, actually they are 4. 1, 2, 3, 4. So my correct answer is B, 4. If two positive integer a and b written in the form x raised to the power 5 y raised to the power 2 and b as x square y cube and x and y are prime numbers, then what would be the HCF of a and b? HCF निकालने के लिए हम नंबर्स के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उन प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारा HCF होता है. तो वही वाला प्रोसेस हम यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. As we know that x raised to the power 5 and x raised to the power 2, तो common factor होगा x square and the both y square and y cube, the common factor must be y square. So the correct answer should be y square and x square, which is your D part. X square y square is the correct answer. Given the HCF 253 440 is 11 and LCM is 253 into R. The value of R is HCF multiplied with LCM equals to number of products. Now 11 into 253 into R is equals to 253 into 440. 253 से 253 की cutting होगी and we can get the value of R, which is 440 upon 11. By cutting we get the answer, which is 40. If D is equals to the LCM of 36 and 198, so what will be the value of D? It means जो भी LCM निकलेगा 36 और 198 का वही D होगा. Factors of 36 are 2 into 2 into 3 into 3 and factors of 198 is 2 into 3 into 3 into 11. Now the least common multiple we have to find out. So 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2 into 11 is equals to 396, which replace the value of D. So the correct answer is A. The largest number which divides 125 and 70 leaves remainder 8 and 5 respectively is leaves remainder 8. तो पहले 125 में से 8 को subtract करेंगे, which is equals to 117. Then 70 minus 5, which is equals to 65. Now we have to find out the HCF of 117 and 65 because we want the largest number which divides. तो एक छोटा नंबर निकालना है इन दोनों से. So let's find out the HCF. So the factors of 117, 13 nines are, 3 threes are, 3 ones are, and 65, 5, 13 or 13 ones are. So the common factor we are having, highest common factor is 13 here. So the answer is 13, which is your D part. If HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is, again we take the HCF of 117 and 65 by using prime factorization.
5 13s are and 13 1s are. 3 3s are 9. 27. 3 1s are 3. 3 3s are 9. 13 1s are. So the HCF we find out from the factors is 30. 13 is the common factor. So HCF is 13. Now it is given that 6m minus 117 is the HCF. So we can make the equation 117 transpose and उधर जाके ये प्लस हो जाएगा. So it is 117 plus 13. So 65m equals to 130 or m is equals to 130 upon 65. 13 1s are, 13 5s are and 5 2s are. So the value of m we got is 2, which is the B part. If PQ are two prime numbers, then LCM of P and Q is, we know that दोनों के factors multiply होकर हमें least common multiple मिलता है. So the correct answer is PQ. A and B are two positive integer and A is greater than B and B is the factor of A, then HCF AB is, it is given that A is greater than B and B is the factor of A. तो इस केस में आपका आंसर होगा B. Which of the following rational number have non-terminating decimal expansion? 3152 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो 5 रेज़ टू द पावर 5 आएगा. 512 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 6. 200 होता है 2 इंटू 100 और 100 के लिए आप कर सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2. तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स 200 के और 455 के लिए फैक्टर्स आएंगे 5, 13 और 7. हमें पता है जिसके भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2, 5 या दोनों होंगे वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा. आपसे पूछा गया है विच नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो आई थिंक 64 अपॉन 455. For some integer a, every even integer is in the form 2a is the answer. कोई भी इंटीजर होगा, मान लो कोई इंटीजर है 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप वो इवन बन जाता है ना, तो 2a is the correct answer. The product of non-zero rational and irrational is always irrational. Which of the following is rational? रूट 6 प्लस रूट 9 रूट से बाहर नहीं आएगा. रूट 6 यहाँ पर रूट 2 रूट से बाहर नहीं आएगा और यहाँ रूट 3 और 5 दोनों ही रूट से बाहर नहीं आएंगे. यहाँ पर है जो कि रूट 4 वो 2 बन जाएगा रूट से बाहर आकर और रूट 9 जो है वो 3 बनेगा. तो वी गेट द आंसर 5 जो कि एक रैशनल नंबर है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लो, मैं ले लेती हूँ 2 और 3, अगर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 6 आता है. कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, ले लेते हैं 5 और 6 तो ये आ जाता है 30. एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर हम लेते हैं 11 इंटू 12 तो ये आ जाता है 132. और ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये 3 से डिविजिबल हैं जो गिवन ऑप्शन हमें दिए हैं, तो 3. लेकिन अगर हम करते हैं 1 इंटू 2 तो वो आता है 2, यानी कि 3 नहीं बल्कि इसके लिए मुझे 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2. 2 से 132, 6, 30 और 2 सब डिविजिबल हैं, तो आंसर इज 2. The decimal expansion of 43 upon 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 3 will terminate after. हमें पता है कैसे निकालते हैं. सबसे पहले फैक्टर्स देखने हैं और फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की है 4, तो ये नंबर जो है 4 डिजिट्स के बाद जो है टर्मिनेट होगा. तो मोर देन 3 डेसिमल प्लेस, आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, यही आप टिक करेंगे. डी इज द करेक्ट आंसर.
2.034 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो रैशनल कैटेगरी में जाएगा. इट इज अ रैशनल नंबर. ऑफ द 4 मेंबर्स विच इज रैशनल नंबर, इसे ठीक कर लेना, ये रैशनल नंबर होगा. तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर आप a माइनस बी होल क्यूब खोलते हैं तो √5 रह जाएगा. बी पार्ट में आपके पास 1 2 3 है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है, तो ये रैशनल कैटेगरी में जा सकता है. यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 के बाद फिर बीच में 2 आया और लास्ट में डॉट डॉट लगा है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी, तो इसको आप चॉइस में नहीं लेंगे. यहाँ पर अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 बना देगा, लेकिन यहाँ जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 ही रह जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 2.123 बार. द रैशनल नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 0.6 बार. मैंने आपको बताया था 6/9 इसका शॉर्टकट वर्जन होता है. जितनी भी डिजिट्स के बार ऊपर बार लगा होता है उतने ही नंबर ऑफ 9 जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. इसकी अगर आप कटिंग करेंगे तो 2/3 आएगा एंड बी इज द करेक्ट आंसर. द डेसिमल एक्सपेंशन 21/24 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस. अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो आपके पास आएगा 2 3 7 एंड 3 8 24, और 8 को अगर आप करेंगे तो 2 × 2 × 2. नीचे 2 जो है आपका वो 3 टाइम्स आ रहा है, और जो भी पावर होती है हाईएस्ट उतने ही टाइम्स के बाद जो है प्लेस आता है डेसिमल का. तो आपका करेक्ट आंसर आएगा सी, विच इज़ 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर. अब हमें पता है इरेशनल निकालना हमें अच्छे से आता है. ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. द रेसिप्रोकल ऑफ इरेशनल नंबर इज डेफिनेटली इरेशनल. द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लीजिए. आई टेक 1 2 3, तो मेरे पास आया 6. अगर मैं लेती हूँ 4 5 और 6 तो मेरे पास आता 120. तो 6 इज द करेक्ट आंसर. ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 6 के डिविजिबल होंगे. द नंबर अंडर द √2 प्लस अंडर द √3 रेज टू द पावर 10 एंड √2 माइनस √3 रेज टू द पावर 10 इज. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास है √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 होल पावर 10. आपके पास यहाँ लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. 2 - 3 होता है इक्वल -1 के. -1 रेज टू द पावर 10 आपको देगा +1. तो आपका आंसर आएगा रैशनल नंबर विच इज़ a.